الیکشن ریفارمز پہ ہمارا زور رہا ہے، اور آج جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ایفرٹ جماعت اسلامی کے انیشیٹو پہ جس کا ہم نے بات کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایفرٹ میں کافی پوٹینشل ہے کہ جماعت اسلامی اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں جہاں ہر سٹیک ہولڈر سے، ہر جماعت سے صلاح مشورہ کر کے جو ضروری الیکٹورل ریفارمز ہے جس کے بغیر اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو کوئی ان الیکشنز میں اعتماد نہیں کریں گے۔ یہ ایک ہسٹوریکل اور بڑا امپورٹنٹ رول جماعت اسلامی ادا کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کشمیر پہ ایک موقف رکھتے ہیں، ایک پاکستانی قوم کا جو کنسنسس ہے، جس کا جماعت اسلامی کا جو فیبرری میں APC ہوا تھا، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن ساتھ بھی تھا، اور ہم نے ایک اگریڈ جوائنٹ موقف اس وقت بھی لیا تھا۔ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو رول حکومت نہیں ادا کر رہی ہے، کہ اس وقت میں جہاں ایک تاریخی ظلم ہوا ہے کشمیر آکیوپائڈ کشمیر میں، اور پہلے دن سے لے کے آج تک ہر جماعت اپنی اپنی کیپیسٹی پہ یہ حکومت کا نالائقی اور نااہلی پہ تنقید تو ضرور کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم سب مل کے آپس میں بیٹھ کے اپوزیشن کشمیر کے عوام کے آواز میں اپنے آواز ملا سکتے ہیں، کشمیر کے عوام کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ ملا سکتے ہیں، تو اس کے بڑا اچھا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں۔ حکومت کا رویہ تو ایکسٹریملی کنفیوزنگ ہے، یہاں تک تو ہم اس کو منافقت کھلوا سکتے ہیں۔ وہ ہمیں ایک دن جناب عمران خان صاحب اٹھ کے ہمیں لیکچر سناتا ہیں کہ مودی جی ہٹلر ہے، اور دوسرا دن اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اس ہٹلر کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ فارن پالیسی کے فیصلے، کشمیر کا مستقبل، جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہمارا نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، پاکستان کا سینٹ اور نیشنل اسمبلی کو کرنا چاہیے، اور اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کا تاریخی ایک موقف رہا ہے، اور آج ہم پہ یہ فرض ہے کہ یہ تاریخی موقف، یہ پاکستان کا موقف، ہر ایک پاکستانی کا موقف کشمیر پہ ہم قوم کے سامنے ہر فورم پہ سامنے لے کر آئے، اور ہم جماعت اسلامی کے ساتھ اس ایشو پہ مل کے کام کرنے کے لیے کھلے دل سے بھی تیار ہے، اور اس کا اچھا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو تنقید سراج الحق صاحب نے اس ملک کا احتساب کی عمل پہ ابھی آپ کے سامنے کیا تھا، اس پہ بھی ہم کافی حد تک اگری کرتے ہیں، اور ہمارا شروع دن سے نیب کی بنیاد کی دن سے یہی موقف رہا ہے کہ ایک آمر کا بنا ہوا ادارہ جو یک طرفہ احتساب کرتی ہے، جو صرف اپوزیشن کو نشانہ بناتا ہے، اس کا کرپشن میں اور اکاؤنٹیبلٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے یک طرفہ نظام سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس بات کی اگری کرتی ہے، انڈورس کرتی ہے کہ اس یک طرفہ احتساب کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی اس حکومت کے اندر پاکستان میں کرپشن کا اضافہ ہوا ہے، کرپشن میں کمی نہیں ہوا ہے۔ تو آئی تھنک کہ آج کا یہاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کے درمیان ایک تاریخی ملاقات ہوا ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہم اسی رویے سے آگے بڑھیں، اور ہم ہر موقع پہ جماعت اسلامی کی ایکسپیرینس سے، ان کا ہسٹری سے فائدہ اٹھائے، تاکہ ہم آنے والے مستقبل جہاں ان کو صرف وہ غیر سیاسی، غیر پارلیمانی
सियासत टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, हम उनके लिए एक पॉजिटिव एग्ज़ाम्पल भी दें, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल भी दें कि इस मुल्क में ऐसी सियासी जमातें हैं जो गालिन गलोच के सिवा एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा कुछ काम भी करना चाहते हैं। है उसके अंदर ये तासुर दिया जा रहा है बार बार कि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च कैंसिल हुआ है वो पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, इस वजह से कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे हटी है। कि आपको कोई डील हुई थी पीडीएम के अंदर के इस्तीफे देंगे? जहाँ तक सेनेट की बात है, गिलानी साहब तो चेयरमैन सेनेट है, और जहाँ तक मेरा मौक़िफ़ है, मेरा पार्टी का मौक़िफ़ है कि हम ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीत चुके हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा केस भी लग गया है, कोर्ट में हमारा डेट भी लग चुके हैं, और हम ये केस जो है अदालत में भी लड़ेंगे, हर महाज पे लड़ेंगे। जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का सवाल है, ये पाकिस्तान में और ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में एक डेमोक्रेटिक नॉर्म रहा है, एक जमहूरी प्रैक्टिस रहा है कि जिसका सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी है उसको लीडर ऑफ द अपोजिशन होने का हक हासिल होता है। और हम चाहेंगे कि हम सारे जमातों के साथ मिलके इसी कंसेंसस को, इसी जमहूरी प्रैक्टिस को आगे लेके चले कि हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बेहतर होगा। जहाँ तक लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च का डिले होना का सवाल है, मेरा मौक़िफ़ ये है कि हमारा लॉन्ग मार्च को एक डिले नहीं होना चाहिए था। जब आपने कौम के सामने ये ऐलान किया था कि 26 को एक मार्च होना था, मैं बाकी जमातों पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जमात का काफ़ी तैयारी था। जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सिंध का इंचार्ज है, उसने सिंध का हर ज़िला का दौरा किया था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। और मैं जहाँ तक इस्तीफ़ा का सवाल है, ऑब्वियसली उस मीटिंग के बाद हमने ये इशू अपना सीसी में डिस्कस करना था, मगर मैं ये सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफ़ी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफ़ी करना था तो फिर उस वक्त नफ़ी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुल्क की मफाद और जमहूरियत की बहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन में जितने भी जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अपोजिशन में जितने भी जमात पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर है और जितने भी जमातें पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बाहर हैं, हमने हर किसी जमात के साथ मिल के जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा। और आपका जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कामयाबी था कि नेशनल असम्बली में वज़ीर आज़म का हल्का में जाके वज़ीर आज़म को शिकस्त दिलवाना, फिर सेनेट में जाके, हाउस ऑफ द फेडरेशन में जाके वफाक को शिकस्त दिलवाना, पूरा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक एक तरफ और ये दो इलेक्शंस एक तरफ। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। ये बात तो आप बाई इलेक्शंस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो 7 बाई इलेक्शंस मुल्क के कोने कोने में लड़े गए, हर सूबा में लड़े गए, हुकूमत को टफ़ टाइम दिया गया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें उस बाई इलेक्शन से भी बॉयकॉट करना चाहिए था, सेनेट से भी और नेशनल असम्बली से भी बॉयकॉट करना चाहिए था। और जब नेशनल असम्बली में और सेनेट में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जीत हुआ, ये जमातों या ये ग्रुप जो ये तजवीज़ दे रहे थे कि हम सिस्टम से आउट रहें, वो गलत साबित हुए। तो हमारा उम्मीद था कि इस मीटिंग में हम लॉन्ग मार्च पे ज़ोर और फोकस करते, हम अपना कामयाबियों में पे फोकस करते, और अगर कोई अपना मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते तो वो लोग अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन से इस
PDM की बुनियाद रखते हुए अपोजिशन जमातों को इंगेज करने की कोशिश की। उस वक्त भी जब सारे अपोजिशन जमातों इंगेज करने को तैयार नहीं थे, और आज भी ये मेरी कोशिश रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा कि पाकिस्तान में जितने भी अपोजिशन जमातें हैं हम यूनाइटेड रहें। इसलिए अगर हमारे दरमियान यूनिटी नहीं होगा तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान को होगा, किसी और को नहीं होगा। मैं आज जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर्स पे आके सिराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। मेरा ख्याल है बारी बारी सब कर लें, एक ही दफ़ा जवाब आ जाए। जहाँ तक नवाज़ शरीफ का जनरलों से एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियाँ साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए, हर किसी का एहतसाब होना चाहिए। हम तो इस सेलेक्ट होने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू नहीं हुआ, वो किसी और के दौर में शुरू हुआ था, और हम चाहते हैं कि इस सेलेक्ट होने का सिलसिला में हम फुल स्टॉप डालें। एहतसाब का और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जो मुतालबा है वो मेरा मंशूर का हिस्सा है, वो सिराजुल हक साहब का भी मुतालबा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी यही मुतालबा आपके सामने, मीडिया के सामने, कौम के सामने रखा था, तो हम उसी मुतालबा पे कायम हैं। जहाँ तक अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। 26 मार्च को मरियम नवाज नैब में पेश होने जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PDM की तमाम जमातों के कारकुन और कायदीन उनके साथ जाएंगे, या पीपल्स पार्टी जाएगी या आप जाएंगे? हम मज़ाहमत करते हैं, हम कंडेम करते हैं, हम आपस में सियासी इख्तलाफात रख सकते हैं, लेकिन इस पे कभी एग्री नहीं कर सकते कि नैब का अदारा, एहतसाब का अदारा किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, चाहे वो मरियम शरीफ साहिबा हो या CM मुराद अली शाह साहब हो, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, JUI हो। हर किसी का किसी के पास ये शिकायत नहीं होना चाहिए कि एक यकतरफ़ा एहतसाब हो रहा है, और जिस अंदाज से मरियम शरीफ साहिबा को बुलाया गया है, तलब किया गया है, it is left the NAB open to criticism. हम समझते हैं कि अपोजिशन का काम है कि हम हुकूमत को नुकसान पहुँचाएँ, और जो पंजाब में इस वक्त सूरत हाल है, पंजाब असम्बली में जो सूरत हाल है, नेशनल असम्बली में जो सूरत हाल है, वो प्राइम्ड है एक अदम एतमाद का लाहे अमल, एक अदम एतमाद का सिलसिला शुरू करने के लिए। हार जीत तो अपनी जगह अल्लाह ताला के हाथ में होता है, लेकिन इस लड़ाई लड़ने में से सिर्फ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से आप हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचाते हो उतना आप शायद जलसे जुलूस के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हो। तो हमारा हमेशा मौक़िफ़ ये रहा है कि हमें पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर भी हुकूमत को टफ़ टाइम देना चाहिए, उनका मुकाबला करना चाहिए।
اور اسی میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو یہ آخری کوئی سوال۔ فائدہ ہو سکتا ہے۔ بس شکریہ۔ میں آپ سب کے ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پہ ایک الگ پریس کانفرنس رکھتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بہت ضروری ہے، آپس میں مل کے اپوزیشن جماعتوں کو کام کرے بہت ضروری ہے، لیکن آج میں جماعت اسلامی کے ساتھ سراج الحق صاحب کے پاس آیا ہوں کہ کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ایسے دو جماعتیں ہیں جو کبھی اس سلیکٹ ہونے کے سلسلہ میں نہیں رہا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور سراج الحق صاحب کی جماعت اسلامی ہے، اور ہم آپس میں کامن گراؤنڈ ڈھونڈ کے، میوچل گراؤنڈ ڈھونڈ کے یہ ایفرٹ کریں گے کہ ہم عوام کے مسائل میں کمی اور حکومت کے مسائل میں اضافہ کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آئیے جی، آئیے۔